Hello everyone. Continuing chapter 6, that is manufacturing industries. Today we will study agro-based industries and will also understand the various aspects related to it. Now we have divided industries in 4 broad categories. These are agro-based industries, mineral industry, automobile industry and information technology industry. So let's first understand the agro-based industries. Now with the name only, we can easily understand that this industry is based on agricultural raw material. That means this industry totally depends upon a raw material produced by the agricultural sector. And the products comprises mostly consumer goods like cotton, jute, silk, woolen textile, sugar and edible oils, etc. Under agro-based industries, we have textile industry and the sugar industry. The textile industry in India is massive because it occupies unique position in Indian economy. अब क्वेश्चन ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यूनिक पोजीशन क्यों है? सिंपल सा रीज़न है क्योंकि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में और फॉरेन एक्सचेंज लाने में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है. Now this textile industry is self-reliant and complete in value chain industry. अब इसका मतलब ये है कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना ये खुद पर निर्भर करती है और वैल्यू चेन में भी कंप्लीट है क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है अपने ही कंट्री में कच्चे माल से रॉ मटेरियल से हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रेडी करती है विद वेरी लेस वेस्टेज. And this is the only industry that contributes heavily in the country's GDP also. Now, if you look at this figure, you can see the value addition in the textile industry. Now, here the chain goes from fibre production to the garment manufacture, and in between we get many products like raw fiber, yarn, fabric, garment, etc. So there is always some new product that is being created in the cycle and there is very little wastage associated in this industry. Now under textile industry, we are going to study cotton textile. As we know that cotton textile is a traditional industry, that means in ancient India, cotton textiles were produced by hand spinning and handloom weaving techniques. And during the Mughal era, the craftsmen of Kashmir had specialization in producing woolen products. And Bengal became famous for cotton textile industries. So if you look at the first picture about the carpet weaving and the fine colored clothes, this all proves the fact that cotton textile is a traditional industry. And if you look at the second classic picture of Gandhiji and the spinning wheel during the British time emphasizes the point that cotton textile is a traditional industry and has been in India for ages. In the same way, silk weaving was an important industry in Lahore, Agra and Gujarat. Now after 18th century, power looms came into the force. Now power looms are the machines that looks like the same as shown in this image which is in front of you. You must know that during 18th century, industrial revolution came into force in Europe, especially in Britain, and the benefit of this industrial revolution never reaches to the countries that were the colonies of Britain. अब देखने वाली बात यह है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हमारे कंट्री को भी बहुत बड़ा झटका लगा था क्योंकि यहाँ तो अंग्रेज़ों का राज था और जिसकी वजह से हमारे जो बुनकर थे ना वो इंग्लैंड से बनकर आने वाली मिल के जो कपड़े थे उनसे compete नहीं कर पाते थे. अब इनिशियल स्टेज में इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी वो महाराष्ट्र और गुजरात की कॉटन उगाने वाली बेल्ट में ही कॉन्सेंट्रेटेड थी और इसका मेन रीज़न ये भी था कि वहाँ जो है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल था यानी कि कॉटन आसानी से मिल जाता था. बड़े शहरों के रूप में क्या था वहाँ पे मार्केट था और ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ साथ
पोर्ट्स भी थे एक्सपोर्ट करने के लिए, और वहाँ चीप और स्किलफुल लेबर भी इजीली अवेलेबल मिल जाती थी। और सबसे अच्छा फैक्टर और एक और था वहाँ पे कि वहाँ का जो क्लाइमेट था वो मॉइस्ट क्लाइमेट था। तो ये सारे फैक्टर्स उस पर्टिकुलर महाराष्ट्र और गुजरात बेल्ट पे इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे थे। So today there are nearly 1600 cotton and human-made fiber textile mills in our country, out of which 80% mills are in the private sector and rest are in the public and the cooperative sector. Now I have marked a circle over the Maharashtra and the Gujarat belt. अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी कि महाराष्ट्र और गुजरात बेल्ट में जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी उनकी ग्रोथ के क्या रीज़न था, वो फैक्टर्स हमने स्टडी किए। तो ये बेल्ट कितनी बड़ी थी वो मैंने आपके लिए यहाँ पर मार्क कर दिया है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ अ वेरी क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे कॉटन बॉल्स तोड़ने के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है, और मिल में एज अ वर्कर काम करने के लिए लोगों को रोज़गार मिल जाता है। तो ये जो मिल वर्कर्स होते हैं ये डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स को डिफरेंट यूनिट्स में कंप्लीट करते हैं, जैसे गिनिंग है, स्पिनिंग है, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, देन स्विंग एट्सेट्रा। तो ये सारे काम क्या होते हैं, एक सिंगल रूफ मिल की छत एक मिल में ही कंप्लीट किए जाते हैं। अब देखो ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये कई और इंडस्ट्रीज़ के साथ भी जुड़ी हुई है और उन इंडस्ट्रीज़ के लिए डिमांड क्रिएट करती है, यानी कि जो मटेरियल इस इंडस्ट्री में चाहिए वो दूसरी इंडस्ट्री से पूरा करती है। तो इस तरह से ये जो है दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करती है। सपोर्ट करने का मतलब जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ ग्रो करती हैं, जैसे केमिकल्स और डाइज़, क्योंकि टेक्सटाइल कपड़ों पर कलर चढ़ाए जाते हैं तो ये उससे लिंक रखती है। फिर पैकेजिंग मटेरियल्स, टेक्सटाइल मशीनरीज एट्सेट्रा। अब इंडिया में स्पिनिंग यानी कि कॉटन से यान बनाने तक का काम जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में ही बेसिकली सेंट्रलाइज्ड है। एंड वी हैव वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, मतलब हमारा जो धागा है वो सबसे बेहतरीन धागा आता है कॉटन का, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्शन है ये हमारे वीविंग में नहीं है। वीविंग का मतलब क्या है, कपड़ा बनाना, मतलब जो हमारा कपड़ा बन के तैयार होता है, बुना जाता है, वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का नहीं होता। अब देखो अकॉर्डिंग टू NCERT बुक जो वीविंग है वो हमारे कंट्री में हाईली डिसेंट्रलाइज है, यानी कि ये जो वीविंग है हमारे कंट्री में ये एक किसी पर्टिकुलर जगह नहीं होती बल्कि कई जगह फैली हुई है, और इसी वजह से इसमें ट्रेडिशनल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा रेशियो में देखने को मिलते हैं, है ना। अब आपने देखा ही होगा लखनऊ की जो है एम्ब्रॉयडरी वो डिफरेंट है, पंजाब की फुलकारी वो डिफरेंट है, कश्मीर की शॉल्स डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट पैटर्न में बनी रहती हैं, ठीक है। राजस्थान का जो लहरिया प्रिंट है वो डिफरेंट है। तो इस तरीके से क्योंकि वीविंग डिसेंट्रलाइज है इस वजह से इसमें ट्रेडिशनल स्किल्स देखने को मिलती हैं। अब जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी वीविंग जो है वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं है वीविंग में। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा बेस्ट क्वालिटी यान है, यान क्वालिटी हमारी वर्ल्ड क्लास जो है प्रोडक्शन है, उसमें हम जो सबसे बढ़िया धागा होता है वो तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जो लो ग्रेड यान होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, फर्दर वीविंग करते हैं। अब क्योंकि वो धागा ही पुअर क्वालिटी का है या लो ग्रेड का है, तो फिर फैब्रिक भी जो बनेगा वो भी लो क्वालिटी का ही बनेगा। और अब क्या है, लो क्वालिटी फैब्रिक पे जो एम्ब्रॉयडरी या जो भी आप उसमें काम करते हो वो उसका ड्यूरेबिलिटी, उसका लुक कंपैरेटिवली लो रहता है। अच्छी बेस्ट क्वालिटी का जो फैब्रिक है उसके ऊपर आप देख लो, और जो लो क्वालिटी का फैब्रिक है उस पर आप देख लो, तो ये वेरी करता है।
अब देखो हमारे कंट्री में वीविंग जो है वो हैंडलूम्स, पावर लूम्स और मिल में होती है, और जो कॉटेज इंडस्ट्री है ये वीवर्स को, यानी कि जो बुनकर होते हैं ना, कपड़ा बुनने वाले, उनको एम्प्लॉयमेंट देती है। Now India exports its yarn to Japan and cotton goods to USA, Russia, France, East European countries, Nepal, Singapore, Sri Lanka and African countries based on their requirements only. So पूरे वर्ल्ड में होने वाले कॉटन यार्न में हमारा जो शेयर है वो बहुत बड़ा है। हमारी स्पिनिंग मिल्स ग्लोबल लेवल पर compete करती हैं और देश में होने वाले हर टाइप के फैब्रिक का धागा बना सकती हैं। सो अकॉर्डिंग टू आवर बुक, वीविंग मिल्स और निटिंग मिल्स और जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो कंट्री में बने हाई क्वालिटी यार्न को यूज़ नहीं कर पाती। अब देखो इस सेगमेंट में कुछ बड़ी मिल्स के नाम भी हैं, जैसे आपका ट्रायल एंड ग्रुप जो सेगमेंट है वो ये एक काफ़ी बड़ी मिल है। ये 90% धागा अपनी मिल में, इस मिल में जो बनता है वो उसको कम्प्लीटली यूज़ कर लेती है, ठीक है, और जो बचा हुआ 10% होता है उसी को एक्सपोर्ट करती है। और जो ये 90% अपना बेस्ट क्वालिटी का जो धागा यूज़ कर लेती है उससे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स जनरेट करती है, जैसे टॉवल हैं, बेडशीट्स वगैरह हैं। तो ये चीज़ें इस ट्रायल एंड ग्रुप की ही प्रोडक्शन है जो कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स में आते हैं। बट ज़्यादातर प्रोडक्शन जो है वो छोटी मोटी फैक्ट्रीज़ में ही होता है जो कि कंट्री की लोकल मार्केट की ही नीड को फुलफ़िल कर पाता है। तो दिस मिसमैच इज़ द मेजर ड्रॉबैक फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इसी वजह से क्या होता है, कई स्पिनर्स जो हैं वो कॉटन यार्न को एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि गारमेंट बनाने वाले बाहर से फैब्रिक यानी कपड़े को इंपोर्ट करते हैं। तो आज हमारी करंट सिचुएशन ये है कि हमने बेस्ट क्वालिटी कॉटन यानी कि लंबे रेशे वाली जो कॉटन होती है ना, उसका प्रोडक्शन काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट स्टिल imports are done. Now here are some of the problems that are being faced by cotton industry. The first one is the low output of the labor. यानी कि अभी लेबर जितना हमें आउटपुट चाहिए उतनी आउटपुट नहीं दे रही है, तो लेबर से मॉडर्न मैनेजमेंट के तरीक़ों से काम लेकर हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। And in many places like we people are still using traditional techniques. अब traditional techniques यूज़ करने से जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो इतनी अच्छे से इंक्रीज़ नहीं होगी, so we should stop this. Third is cotton industry is facing a very stiff competition from the synthetic fiber industry because it is easier and much faster to produce. So it has an edges in feeding the growing demand of the market. अब क्या है, जहाँ पर कॉटन के प्रोडक्ट्स पहुँचते हैं और वो कॉस्टली होते हैं तो वहाँ पर वो बिकते ही नहीं हैं, क्योंकि उसके टक्कर में क्या है, सिंथेटिक फाइबर के प्रोडक्ट आ चुके हैं और वो क्या है, कंपैरेटिवली चीपर हैं और उनके जैसे कलर्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हैं, ठीक है, हल्का कपड़ा है और उसमें वैरायटी है, जबकि कॉटन में नहीं है। नेक्स्ट इज़ पावर सप्लाई इज़ एराटिक, यानी कि हमारे कंट्री में देखो बिजली की जो सप्लाई है वो हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कहीं कहीं तो पावर सप्लाई है ही नहीं और कहीं कहीं जो पावर सप्लाई है भी तो उसमें क्या होता है, बीच बीच में रुक जाती है पावर सप्लाई, तो उसकी की वजह से इंडस्ट्री सफ़र करती है। सो हमारे पास जो है पावर बैकअप अच्छा होना चाहिए। दो वी हैव लार्ज इंडस्ट्रीज आर हैविंग गुड पावर बैकअप, बट व्हाट अबाउट द स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, सो दिस पावर बैकअप इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। बेसिकली ये जो है सब कुछ पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से है, तो गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लाना चाहिए विद द टाइम ओनली, ताकि जो है हम कंट्री की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें। The most important point is we must upgrade our machineries of the weaving sector. क्या है कि हमारे पास जो मशीनरी एक ज़माने में लग चुकी है वीविंग सेक्टर में, हम उसी की टूट फूट को रिपेयर करते रहते हैं, उसी को कसते रहते हैं, उसके कलपुर्जे ग्रीसिंग करते रहते हैं और फिर उसी में काम करते रहते हैं। बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट। हमें क्या करना चाहिए,
हाईटेक मशीनरीज़ या मॉडर्न मशीनरीज़ को यूज़ करना चाहिए। अब वो चाहे हमें इंपोर्ट करनी पड़े या फिर हम अपने कंट्री में ही बनाएं। सो दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। नाउ इन दिस स्लाइड आई हैव शोन मेन कॉटन इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। कई बार ये एग्ज़ाम में मैप स्किल्स जो क्वेश्चन रहता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि मेजर कॉटन इंडस्ट्रीज़ इंडिया की कहाँ कहाँ पर हैं। कुछ टिप्स हैं, अगर आप डायरेक्ट ऐसे देख के याद कर सकते हैं, इट्स गुड्स। अदरवाइज़ जैसे आपको गुजरात में जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं अगर उनको याद करना है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि गुजरात के अब आप देखो एक्सट्रीम कॉर्नर में क्या है, पोरबंदर। अब पोरबंदर कैसे याद रखोगे, यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। देन राजकोट है यहाँ पर, जहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री है गुजरात में। तो राजकोट में क्या था, महात्मा गांधी जी के जो फादर थे वो राजकोट के दीवान थे, तो अब आपको राजकोट भी याद हो जाएगा, ठीक है। देन थोड़ा सा जो राइट में आप देखो वडोदरा है, और फिर थोड़ा नीचे देखो आप सूरत है, ठीक है। तो ये हो गए आपके गुजरात एरिया के कॉटन इंडस्ट्रीज़। अब महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई, यानी कि मुंबई में कॉटन इंडस्ट्री है। फिर थोड़ा राइट में देखो पुणे, तो पुणे में कॉटन इंडस्ट्री है। और थोड़ा सा राइट और थोड़ा सा ऊपर देखो तो औरंगाबाद है, और औरंगाबाद के जस्ट ऊपर जलगांव है। और फिर आप नागपुर में देखो वर्धा है। तो ये रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर अच्छी कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं। अब तमिलनाडु के रीजन में देख लीजिए, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई, यानी कि चेन्नई में है कॉटन इंडस्ट्री। देन तमिलनाडु का जो सेकंड बड़ा स्टेट है या आप समझ लो शहर है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर किस लिए फेमस है, लीडरशिप स्कूल के लिए फेमस है। तो इस वजह से फर्स्ट हो गया चेन्नई, सेकंड हो गया कोयम्बटूर, और थर्ड जो है जहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री है तमिलनाडु साइड में, तो वो है आपका मदुरई, जो कि रामेश्वरम के पास है। अब वेस्ट बंगाल वाली साइड देखें, यहाँ पर हुगली रिवर है, हुगली से थोड़ा ऊपर हावड़ा है, और बांग्लादेश बॉर्डर के पास मुर्शिदाबाद है। तो ये तीन जो हैं कॉटन सेंटर्स, कॉटन इंडस्ट्री सेंटर्स हैं यहाँ पर इन द वेस्ट बंगाल। देन बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, ये तीन मेजर कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं, रीजन्स, कॉटन इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। Now in this slide I have summarized the complete textile industry, so you can check out these main points. Next agro-based industry is jute textile. Now India is the largest producer of raw jute and the jute goods. India is also the second largest exporter of jute after Bangladesh. ना जूट टेक्सटाइल की जो ज़्यादातर मिल्स हैं वो वेस्ट बंगाल में ही हैं, और वो भी एक नैरो बेल्ट में, हुगली रिवर के किनारे किनारे, ठीक है। अब इस हुगली रिवर के बेसिन में इन मिल्स के लगने की कई सारे रीजंस हैं। अब सबसे बड़ा रीज़न तो सिंपल सा है कि इन मिल्स का जो रॉ मटेरियल है यानी कि जूट, वो इस रीजन में ही उगता है, तो ईजिली अवेलेबल भी है। देन सेकेंड रीज़न है इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट of Hooghly river, and along with this a very good network of eastern railways is also available here. Then रोड नेटवर्क भी बहुत बढ़िया है, जिससे जो है रॉ मटेरियल इजीली मिल्स तक पहुंचाया जा सकता है। देन कम्स रॉ जूट, यानी कि कच्चा जूट जो है उसको प्रोसेस करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में यूज़ किया जाता है, पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो हुगली रिवर पे तो पानी की कोई कमी ही नहीं है, तो यहाँ पे जो है कच्चा जूट इजीली प्रोसेस हो जाता है, रॉ जूट की प्रोसेसिंग इजीली हो जाती है। देन कम्स द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फ्रॉम यूपी, बिहार, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। एंड आफ्टर दैट कोलकाता, देखो कोलकाता एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर है। अर्बन सेंटर का मतलब क्या होता है, महानगर है। तो यहाँ बैंकिंग, इंश्योरेंस और जूट से जितना भी तैयार माल है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है, पोर्ट की फैसिलिटी है। अब जूट से देखो काफ़ी कॉस्टली और काफ़ी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे हमारे हैंड बैग्स, चेयर कवर, कर्टेन, रग्स, कारपेट्स, पैकिंग बैग्स एट्सेट्रा। अब आजकल इस इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे मार्केट में जूट का सब्स्टिट्यूट आ चुका है,
लाइक नायलॉन, प्लास्टिक बैग्स एट्सेट्रा। तो लोग क्या कर रहे हैं, जूट को छोड़कर इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, तो जूट का है कंजम्पशन कम हो गया, तो जब कंजम्पशन कम होगा तो उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन सेकेंडली क्या है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो जूट को सस्ता एक्सपोर्ट कर दे रही हैं, जैसे बांग्लादेश, ब्राज़ील, इजिप्ट, फिलीपाइंस, थाईलैंड। अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो जूट के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में आए हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग से होने वाले पॉल्यूशन की तरफ ध्यान दिया और फिर उस पॉल्यूशन पे रोक लगाया, और गवर्नमेंट ने जूट को प्रेफरेंस दी। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि जूट को कहाँ यूज़ किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा पैकेजिंग में जूट को कंपलसरी कर दो, मैंडेटरी कर दो। तो अब सिर्फ जूट अगर पैकेजिंग में ही यूज़ होगा तो ये सफिशिएंट नहीं है जूट इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, तो इसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मतलब जूट के और भी यूजेस निकालने पड़ेंगे और डिफरेंट चीज़ों में हमें जूट को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे प्लास्टिक बैग्स हैं, प्लास्टिक बैग सस्ता होता है, उसकी लाइफ कितनी होती है, 2 या 3 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जूट बैग जो है, एक बैग लिया 3 मंथ्स तक वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में रहता है और इट कॉस्ट 20 रुपीज़। अब आप 3 मंथ्स में अगर प्लास्टिक बैग्स का काउंट देखते हो तो नियर अबाउट 60 प्लास्टिक बैग्स आपने ख़त्म कर दिए। तो इस तरीके से जो है जूट को हमें रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहिए, जूट इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। जूट वॉशेबल है, उसको क्लीन कर लो जूट बैग्स को, और बहुत चमकते रहते हैं और बढ़िया लगते हैं और ड्यूरेबल भी रहते हैं। अब एक मैंने एग्जांपल आपको लास्ट टाइम दिया था ग्लोबलाइजेशन वाले टॉपिक में कि गवर्नमेंट ने क्या किया जम्मू कश्मीर में। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ प्रसाद बैग्स जो हैं वो जूट के बने हैं। अब ऐसे ही शिरडी में भी हो चुका है कंपल्शन कि जितने भी प्रसाद बैग्स रहेंगे वो जूट के होंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जूट की प्रोडक्शन को दोबारा से इंक्रीज़ करना शुरू किया है। जूट का जो मेन मार्केट है वो है यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया। अब जैसे आज की डेट में जो है एनवायरनमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर कंट्री का कंसर्न नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पे ये कंसर्न काफ़ी ज़्यादा तूड़ पकड़ चुका है। सो हम उसके लिए क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, नायलॉन, रेयॉन, सिंथेटिक फाइबर्स को छोड़ के, प्लास्टिक बैग्स को छोड़ के जो है जूट और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की तरफ बढ़ना चाहिए। Now the next agro-based industry is the sugar industry. India stands second as a world producer of sugar but occupies first place in the production of gur and khansari. Now the raw material of sugar industry is sugarcane and it is bulky in nature. So it's haulage. Haulage का मतलब ढुलाई. It reduces its sucrose content. Now as far as the sugar mills are concerned, so 60% sugar mills are located in UP and Bihar, and rest of the sugar mills are present in Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Punjab, Haryana and Madhya Pradesh. As we know that this industry is seasonal in nature, thus this industry is ideally suited to cooperative sector. एक्चुअली कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है कि मिडिल मैन नहीं आता, जो बीच में किसानों का प्रॉफिट खा लेता है ना, तो वो नहीं होता। तो डायरेक्ट फार्मर जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो मिल्स को सेल आउट करता है, और जो कोऑपरेटिव सेक्टर है और जो मिल वाले हैं वो डायरेक्ट किसान से अपना किसान से उसका गन्ना खरीद लेते हैं। तो जब मिडिल मैन है ही नहीं तो प्रॉफिट कोई भी नहीं ले जाएगा, सीधा किसान को किसान का हक मिल जाता है। In the recent years, sugar mills are shifting and concentrating southern and the western states, mainly in the Maharashtra, because the cane produced there has a higher sucrose content, and the cooler climate ensures longer crushing season. And finally, cooperatives are more successful in these states as compared to the UP and Bihar. Now, few challenges are also there which are faced by the sugar industry, and these are seasonal nature of the industry,
Then second is the old and inefficient method of production. Then transport delay in reaching sugar canes to the factories, as a result of which sucrose content reduced. Then need to maximum use of sugarcane baggase. sugarcane baggase का मतलब होता है जब गन्ने का हम रस निकाल लेते हैं तो वो जो गन्ने की छिलका बचता है उसको हम कहते हैं शुगर केन बैगीज. तो ये जो है शुगर केन बैगीज जो हैं ये इतना ज़्यादा अमाउंट में बच जाता है कि वो सब हमारे लिए इस समय यूज़लेस है. बट कुछ तो क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव मेथड से हमें उसे रीयूज़ करना पड़ेगा और रीयूज़ में भी उसका मैक्सिमम और सॉलिड यूज़ करना चाहिए ताकि हम उससे भी प्रॉफिट गेन कर सकें. So students, this is all about today's class. Hope you understand well, but still if you have any query, you can call me or you can mention your doubts in the comment section. I'll clarify your doubts. So till next class, keep learning, keep revising.